prayerfully, if you seek the Lord, He will definitely speak to you. आप सब आज प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के पास बैठे हैं तो निश्चित आपको प्रभु आशीष देगा। Personally, I believe that the past sessions were really a great blessing in many of your life. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि पिछले जो सेशंस गए वो हम सबके जीवन में बहुत ही आशीष था। I felt in my spirit. और वह मैं मेरे आत्मा में मैंने उसको फील किया है। I strongly believe that something has already took place and you are going to see the changes in the coming days. और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में एक छुटकारा मिला है, आने वाले दिनों में वो आप महसूस करने जा रहे हैं। And tonight we are going to hear about fruitful family, satisfied family. और आज शाम के वक्त हम लोग एक बहुत ही जो फ्रूटफुल एक परिवार है उसके बारे में सुनने जा रहे हैं। Satisfied, fruitful family life God want to give in our life. एक जो बहुत ही फला फूला हुआ परिवार, एक जो संतृप्त परिवार। This is a concluding message. ये जो हमारा फैमिली कॉन्फ्रेंस का एकदम खत्म होने वाला मैसेज We है। will spend more time in prayer tonight. और आज हम ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे। What we heard during the past sessions, we will meditate and we will pray, and the Lord is going to do a miracle in our life. और आज हम लोग पिछले दिनों में क्या क्या सुना है उस सब को फिर से याद कर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। Just close your eyes and one more minute, let's pray. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Father, thank you for this blessed and wonderful opportunity during this final session again. You speak to us, Lord, and touch us and deliver us, Lord. Thank you for teaching us your word during the past session, speaking to us and delivering us, and we experience a great breakthrough in our personal life, Master. And during this concluding session, we want to see you coming down and touching the people, touching the families and blessing the families. Thank you, Lord. We give you all glory, all honor, all praise. Jesus, you are our Lord. We give you glory, we give you honor. And once again, Holy Spirit, we welcome you. Without you, we can't do anything. Come and bless us. Come and use us. We take authority in Jesus' name and we bind Satan and his works. We command him to go under the feet of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' mighty name we ask you, Heavenly Father. Amen. And what is the present shape of your family is not a problem to Jesus Christ. आपका अभी कैसे अवस्था में आपका परिवार है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई समस्या नहीं है। Maybe many of you are leading a very satisfied, fruitful family life. और आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत ही संतृप्त एक परिवार है आपका परिवार। Even then you will, if you seek the face, you will get more abundance in your life. तब भी अगर आप सच्ची हृदय से परमेश्वर की खोज करेंगे तो और भी ज्यादा आशीष आपके परिवार में मिलेगा। But someone else's case, if you are going through some struggles and if your family's shape is not according to the word of God, don't worry, Jesus can restore your family life. और यहाँ पे कुछ लोग जो सोचते हैं कि आपका परिवार इतना ठीक से नहीं जा रहा है, जैसे वचन में ऐसा नहीं जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह वो भी उसको ठीक कर सकता है। Hopelessness is not in the word of God. और कभी भी परमेश्वर के वचन में आशा नहीं, किसी बात के लिए कोई आशा नहीं, ऐसा एक पद नहीं है। In every situation there is hope. और हर एक साहचर्य में, हर एक सिचुएशन में यीशु मसीह के पास वहाँ पे एक आशा है। And you please trust in God, and if you are ready to work with Jesus Christ, He will restore your family life. आपको क्या करना है, आप यीशु मसीह को पूरा भरोसा कीजिए, जरूर यीशु मसीह आपका परिवार को एक अच्छा परिवार बनाएगा। You dreamed something, but reality you are nowhere. और आपने अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सपना देखा, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। What will you do now? अभी आप क्या करेंगे? There is no other option. वहाँ पे अभी कोई चारा नहीं है। Work together with Jesus Christ. आप दोनों को मिलकर यीशु मसीह के साथ ये काम करना है। He will take you to your dreams, and your dreams will become realities in your life.
आपका जो आपको कैसा परिवार चाहिए, आपका क्या इच्छा था, क्या सपना था, उसको लेकर यीशु मसीह के पास जाइए। Forget about your past. Start rebuilding your family life from today onwards. आपका पिछले जीवन में क्या हुआ है वो सब बातों को भूल जाइए और आज से एक नया शुरुआत कीजिए। Settle your past things, settle your past happenings and rebuild from today. Do not remind the past things. और आपका पिछले जीवन में क्या क्या हुआ है उस सब को सेटल कर एक नया जीवन में प्रवेश कीजिए। In the Bible we see our Lord Jesus saving and restoring many families. और हम बाइबल में ऐसे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत से परिवार जो टूटा हुआ था किस प्रकार से उसको ठीक करता है। Literally from destruction, physical destruction, God saved many families. और बहुत ही जो शारीरिक रूप में जो खत्म हो गए थे, एकदम बर्बाद हो गए थे, यीशु मसीह ने उनको ठीक किया है। That is the example of Noah in Genesis chapter 7 and verse 1. God restored, God saved, God rescued his family. और हम नोहा के बारे में उत्पत्ति के किताब में देख सकते हैं किस प्रकार से उस परिवार को बहुत बड़ा एक बिछड़ने से किस प्रकार से उसको बचाया। I was shocked to read that passage when we see all other people on this world and their families were perished, but only one family was rescued by God. और मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा जब मैंने नोहा के बारे में पढ़ा। ये पृथ्वी के सारे परिवार जब नाश हो गए, एक ही परिवार को प्रभु ने बनाकर रखा। Look around and you may be seeing many families living and destroying their life, maybe perishing in this world. In midst of this destruction, you can save your family in the name of Jesus Christ. और आपके समाज में आप देख सकते हैं आपके चारों ओर बहुत से परिवार लोग अपने आप को वो बर्बाद करते हैं, अपना परिवार को तोड़ते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ रहने से आपका परिवार को आप बना सकते हैं। Nothing is impossible with God. हमारे यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible with those who believe. और जो यीशु मसीह को पूरा विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Start praying from today onwards. आज से आप प्रार्थना कीजिए। Many of you may do not have a habit of family prayer. और आप में से बहुत लोगों को एक जो फैमिली प्रेयर है, पूरा परिवार मिलकर जो रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसा आदत नहीं होगा। From tonight onwards, start family prayer. और आज रात से आप एक परिवार के रूप में बैठकर प्रार्थना करने की आदत को डालिए। Family prayer is not like a fellowship. जो फैमिली प्रेयर होता है वो एक फेलोशिप में जैसे हम करते हैं ऐसा नहीं है। Just within 15 minutes, within 20 minutes, you can close your family prayer. आप 15 मिनट 20 मिनट में आपका फैमिली प्रेयर को आप खत्म कर सकते हैं। Don't go for 1 hour, 2 hour family prayer. और 1 घंटा 2 घंटा फैमिली प्रेयर के लिए आप मत जाइए। Every day morning and every day evening, just 10 minutes, 15 minutes spend together, sit together and pray and worship the Lord. और हर दिन सुबह और शाम को आप परिवार, आप पति पत्नी बच्चे मिलकर आकर एक साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए। Many of the things which we taught you, some sisters told us, some brothers told us, it is very good to hear, but it is very difficult to practice. और हमारे बीच में कई भाइयों ने और बहनों ने ऐसा कहा कि आप लोग जो बोलते हैं ये सब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठीक लगता है, लेकिन हमारे जीवन में इसको लागू करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। It's very simple. If you preach against smoking, the smoker will say, it is very good to hear to stop, hearing about stop smoking, but I am not able to stop smoking. तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोग भी आकर ऐसे बोलेंगे कि ये जो सिगरेट पीने का, आप जो सिगरेट नहीं पीना है बोलकर जो प्रचार कर रहे थे, बहुत सुंदर से आपने प्रचार किया, लेकिन ये सिगरेट पीना जो रोकने के लिए थोड़ा मुश्किल है। But one day when there comes a throat cancer and the doctor will say stop taking cigarette, he will stop taking cigarette. लेकिन जब एक दिन वो बीमार हो जाएगा, उसका गले में कैंसर हो जाएगा, जब उसको डॉक्टर बोलेगा कि आज से तुम्हें सिगरेट नहीं पीना है, तब वो सुनेगा, सिगरेट पीना रोक देगा। My dear people, what all things we taught you, it is practical things only. If you try through the power of the Holy Spirit, if you work with
Jesus Christ, you will be able to practice all those things in your family life. मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जो कुछ भी बोला है ये हम लोग कर सकने वाली बात है। आप यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति से आप अपने जीवन में इसको लागू करेंगे तो ये आपको आशीष ही देगा। Don't wait up to cancer. और कभी आप कैंसर या कोई बड़ी बीमारी आने तक इंतजार मत कीजिए। Physical cancer नहीं, family cancer. और एक शारीरिक रूप में कैंसर नहीं, परिवार में जो दुर्घटना कैंसर के रूप में जो घटनाएं आ जाती हैं। It is better to have good health than to receive a healing. और ये अच्छा है कि आपको अच्छा तंदुरुस्त हो ताकि बीमार होने से पहले। After being physically sick, you can receive a healing in Jesus' name. आप शरीर में बीमार होने के बाद आपको एक चंगाई मिल सकती है। But on the other hand, if you trust in God, you can keep your health in good condition. लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका शरीर को कोई बीमारी नहीं होकर भी आपका शरीर को अच्छे से रख सकते हैं। In chapter 16 of Acts, we see the jailer's family in Philippia was saved by Jesus Christ. और हम लोग प्रेरितों के काम उसके चैप्टर 16 में देखते हैं कैसा एक जेलर का जो परिवार है वो पूरा उद्धार को पाता है। That is a salvation, spiritual salvation. वो आत्मिक रक्षा को दिखा रहा है। If God can save that family spiritually, अगर परमेश्वर उस परिवार को आत्मिक रूप में बचा सकता है, He is able to restore your family life also. वो आपका पारिवारिक जीवन को भी बना सकता है। In Exodus chapter 12, we see each family taking a lamb for Passover. और निर्गमन के किताब उसके 12 अध्याय 3 पद में देखते हैं कि हर एक परिवार एक एक बकरी को लेता है पासओवर के लिए। So family by family they were saved from Egypt. और एक एक परिवार कर कर उनको मिस्रैम देश से निकाला गया। That night they all came together. और उस रात को लोग सब एक साथ आया। Husband, wife, children all came together. और उस रात में पति, पत्नी, बच्चे सब मिलकर आए। Sacrificed the Passover lamb. और जो पासओवर का जो बकरी था उसको बलिदान दिया। They prepared that lamb. और उन्होंने वो उस बकरी को अच्छा से बनाया। They ate together. और उन लोग सब मिलकर उसको खाया। From tonight onwards, आज रात से go back to your home. आप अपने घर जब वापस जाते Sit together. आप एक साथ बैठिए, Eat together. आप एक साथ खाना खाइए, Talk together. एक साथ बात कीजिए। If God saved family by family from Egypt, अगर परमेश्वर ने मिस्रैम से एक एक परिवार को बचाया है, He is concerned about families. तो इसका अर्थ है कि वो हमारे परिवारों का चिंता करता है। And allow Jesus to sit on the throne in your family. और आप यीशु मसीह को अपने परिवार के मुख्य स्थान पर यीशु मसीह को बैठाइए। We all know the story of Titanic. In 1912, one ship Titanic was destroyed in North Atlantic Sea. हम सब टाइटैनिक नामक बहुत बड़ा एक जहाज था उसका बारे में जानते होंगे। 1,200 people died. और उसमें 1,200 लोग थे। And again the people in that journey asked one question: Who is in charge of this ship? Who is in charge of this ship? और जब कभी भी ये लोग जब अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, बहुत बार इन्होंने पूछा ये पूरा शिप का कौन देखभाल करता है, कौन इसके चार्ज में है। They trusted in human hands. उन लोग ने मनुष्य को भरोसा किया। But that ship was sank. लेकिन वो जो जहाज है वो पानी में डूब गया। It was destroyed. और वो पूरा खत्म हो गया। That was a great disaster. और वो बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। Tonight ask the same question to your family: Who is in charge? Who is in charge? और आप अपने परिवार में सोचिए आपका परिवार का इंचार्ज किसको आपने पूरा सौंपा है। If Jesus is in charge, अगर आपका परिवार का जो चार्ज यीशु मसीह है, no disaster will happen in your family. कोई भी दुर्घटना
आपका परिवार में नहीं होगा। Even if there comes some problems in your family, आपका परिवार में कुछ समस्या आने से भी He will restore your family life. यीशु मसीह आपका परिवार को उस दुर्घटना से बचाएगा। In Mark chapter 4 we see Jesus was crossing the Sea of Galilee. और हम देखते हैं मरकोस उसका चौथा अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह गलीली नामक जो लेक था उसको क्रॉस करता है। And they also faced a great problem in their life. और उनके जीवन में भी वो बहुत बड़े समस्याओं को सामना करता है। The waves beat the boat and also strong wind came and the boat was about to sink. और वो जो नाव से जा रहे थे वो नाव को एकदम नाश करने के लिए बाढ़ ऐसा आकर पानी ऐसा आकर उसको एकदम हिला देता है। But the boat did not sink. Why? लेकिन वो जो ये नाव है वो पानी में डूब नहीं गया। क्यों ऐसा हुआ? Who was in charge of that boat? वो जो नाव का कौन रक्षक था? Peter was not in charge of that boat. वो उसको पीटर नहीं चला रहा था। John was not in charge of that boat. और जॉन उसका इंचार्ज नहीं था। Jesus was in charge of that यीशु boat. मसीह वो नाव का इंचार्ज था। If Jesus is in charge of your boat, if Jesus is in charge of your family, no destruction will take place. Hallelujah. Forgive one another. आप एक दूसरे को माफ कीजिए। Give the charge of your spiritual, your familyship into the hands of Jesus Christ. और आपका परिवार का पूरा चार्ज आप यीशु मसीह को दे दीजिए। Develop an affection from tonight onwards. और आज रात से आप पति पत्नी के बीच में गहरा प्यार को आने के लिए आप अपने जीवन में अनुमति Then दीजिए। your family is going to be a fruitful, satisfied family. तब आपका जो परिवार है बहुत फलवंत और संतृप्त एक परिवार होगा। Everybody smile for आप a सब moment. हंसिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We want to see this smile in your family life. और हम आपका इतना सुंदर जो हंसना है वो आपका परिवार में भी देखना The चाहते हैं। storytelling eyes looking one another. और एक दूसरे के आंखों में देखकर जो कहानी बोलते हैं। And we see a wonderful family experience in Psalms 128. और हम लोग भजन संगीता उसके 128 में बहुत सुंदर एक परिवार को देखते हैं। That is about a satisfied, fruitful family. और ये बहुत ही फलवंत और संतृप्त एक परिवार के बारे में लिखा गया है। Let's turn to Psalms 128. हम अपने बाइबल में निकालेंगे भजन संगीता 128। In one sense, 127 and 128 are related Psalms. और हम जब पढ़ते हैं हमें मालूम चलता है भजन संगीता 127 और 128 दोनों एक मिलाव है उसमें। In 27, it says about family life. और 127 में हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया है। That verse starts with unless the Lord build the house. और वो भजन संगीता ऐसा शुरू होता है यदि घर को यहोवा ना बनाए। Remember always in your life, you should remember unless the Lord, unless the Lord, unless the Lord drives the car, unless the Lord builds the house, unless the Lord work in my office, unless the Lord give me health, unless the Lord builds the house. और हरदम आपको सोचना है जब तक मेरा कार को प्रभु नहीं चलाता, जब तक मेरे घर को प्रभु नहीं बनाता, जब तक मेरे नौकरी में प्रभु मुझे मदद नहीं करता। If the Lord is in charge, अगर प्रभु आपका इंचार्ज है then fruitfulness, तब आपका जीवन में बहुत फल फूलेंगे, multiplication, और उसमें बहुत आप भर सकेंगे abundance. और बहुत ही ज्यादा मिलेगा। And let us see Psalms 128. हम अभी देखेंगे भजन संगीता 128। It is written, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you out of Zion, and may you see the good of Jerusalem all the days of your life. Yes, may you see your children's children
peace upon Israel. क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। Amen. Hallelujah. Pray to the Lord. Lord, I want such a family in my family life. और आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु या वचन में जैसा लिखा है ऐसा एक परिवार हमको This is a चाहिए। peaceful, prospering family. और ये बहुत ही शांति है ये परिवार में, और बहुत ही अनुग्रहित परिवार This is a है। God-fearing family. और ये परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला एक परिवार है। They are trusting in the Lord. वो परमेश्वर पे पूरा भरोसा करते हैं। One of the very first result of God-fearing family, those who are trusting in God, they will eat their labor. That means when you eat the labor of your hands, what you are receiving or what is your work, what is the benefit you receive from your hard work, you will eat. और जो भी यहोवा का भय मानता है वो ज़रूर अपना जितना कमाई किया, अपना कितना जो परिश्रम किया, उसका फल आपको निश्चय मिलेगा। That means after working for 1 month in office, you will get 10,000 rupees, maybe 7,000 rupees, and 4,000 rupees will not go to the hospital. That money will be benefited for your family. और इसका अर्थ है कि आपने 1 महीना ऑफिस में इतना कष्ट किया, आपको जो 10,000 7,000 जो तनख्वाह मिलता है उसमें से 4,000 हॉस्पिटल नहीं जाएगा, लेकिन वो 4,000 भी आपका परिवार के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। I know many people are going through poverty. और मैं जानते हैं आप में से बहुत लोग पैसे की बहुत कमी है, आपको बहुत मुश्किल है। Especially people coming from village, they are struggling for money. और जो बस्ती से लोग हमारे बीच में आए हैं उनको बहुत पैसों की कमी है। Don't be anxious about your future. आप अपना जीवन में क्या होगा, आगे क्या होगा, चिंता मत कीजिए। Don't anxious about money. आप पैसा कहाँ से मिलेगा इसके चिंता में मत रहिए। Even if you are going through poverty, आपका अभी कुछ पैसों का दिक्कत होने से भी still trust in God. आप अभी भी यीशु को पूरा भरोसा कीजिए। How much you can work, you work. कितना आप काम कर सकते हैं इतना कीजिए। God is able to give you an abundance. और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको भर देगा। And somebody asked me one question that if God's children who are specially doing God's ministry, if they cultivate some land or do some selling or buying, whether God will punish them. और मुझसे कुछ लोगों ने ऐसा पूछा, खासकर जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, क्या उन लोग अपना खेती कर सकते हैं, क्या उन लोग कुछ दुकान कुछ कर सकता है, क्या ये पाप है, इस प्रकार से पूछा। First of all, I want to make a statement here. मैं यहाँ पे एक बात को बोलना चाहता हूँ। Our God is not a fear. हमारा जो परमेश्वर है वो भय नहीं है, कोई डर नहीं है। Our God is love. हमारा परमेश्वर वो प्रेम है। Our God is love. हमारा परमेश्वर यीशु वो प्रेम है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। He is not sitting with a sword or a rod to beat you or kill you or punish you. हमारा यीशु एक बड़ा लकड़ी लेकर या एक चाकू लेकर नहीं बैठा है कि वो आपको मारे, आपको काटे। He is sitting to bless you. वो वहाँ स्वर्ग में बैठा है कि वो आपको आशीष दे। He is a God of mercy. और वो हमारा परमेश्वर हर सबको आशीष देना चाहता है। All the traditional concept of God, take it away from your heart. आपका दिल में कितना जो ये समाज तो दिया हुआ है कि हमारा परमेश्वर को भय करना है, वो हमें मारेगा, काटेगा, ये सबको निकालना है अंदर The से। fear concept has to go from your life. ये जो भय से परमेश्वर को देखना, वो आपका दिल से निकलना है। You have to receive that love revelation of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह का वो प्यार को अंदर लाना है। Love revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का जो प्यार का जो दर्शन है उसको आप पाना है।
You know how much Jesus loves you? आप जानते हैं यीशु मसीह आपको कितना प्यार करता है? Look to the cross. आप उस क्रूस को देखिए, That much Jesus loves you. इतना आपको यीशु मसीह प्यार करता है। He came to this earth not to kill you, but to save you. यीशु मसीह इस धरती पे आया आपको मारने के लिए नहीं, लेकिन आपको जीवन देने के लिए। That's why he died on the cross of Calvary. इसलिए वो क्रूस पर मारा गया। Oh, my dear people, receive that love into your heart. मेरे भाई बहनों, आप यीशु मसीह के उस प्यार को अंदर ले लो। He doesn't want to keep you in poverty. यीशु मसीह कभी आपको गरीबी में मारना नहीं चाहते। He doesn't want to keep you in sickness. हरदम आपको बीमार हो बना के रखना नहीं चाहते। He doesn't want to keep you in peaceless situations. और कोई शांति नहीं, अशांति में आपको मारना नहीं चाहते। He doesn't want to give you a disastrous family life. और आपको बहुत मुश्किल जनक पारिवारिक जीवन नहीं देना चाहते। Jesus wants to prosper you. यीशु मसीह आपको अनुग्रह आशीष देना चाहते हैं। Jesus wants to heal you. यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहते हैं। Jesus wants to bless your family life. यीशु मसीह आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। Hallelujah. And another thing we see in this psalm, there will be happiness in that family. और दूसरी बात जो हम लोग ये भजन संगीता में देखते हैं, ऐसा परिवार में बहुत ही खुशी होगा। You shall be happy. आप बहुत ही खुश होंगे। Hallelujah. Praise the Lord. A truly blessed family. And there we can see joyous environment. और एक सच्ची में आशीषित एक परिवार में हरदम आपको एक खुशी का बहुत ही खुशी आप देख सकते हैं। Amen. Hallelujah. And many families, they doesn't have this happiest or joyful environment. और बहुत से परिवारों में ये खुशी नहीं है। And they are going through pains and sorrows. बहुत से परिवारों में आज दुख है, दर्द है। Unfulfilled desires. उनको बहुत ऐसे इच्छा थी, वो सब ऐसा इच्छा कुछ भी पूरा नहीं है, ऐसे करके वो लोग आगे जाते हैं। Calculating about their losses. और वो आप ये भी गिन रहे उनको क्या क्या नष्ट हुआ है। Stop it. आप ये सब रोक दीजिए। Make your family with joy. Make environment a joyful environment. आप अपने परिवार के अंदर पूरा खुशी से भर दीजिए। वो बहुत ही खुशी से भरा हुआ एक घर आपका परिवार को बना दीजिए। When Jesus comes to your family life, यीशु मसीह जब आपके परिवार में आते हैं, when he takes charge of your family, यीशु मसीह जब आपका परिवार का पूरा नियंत्रण ले लेते हैं, I believe that will happen in your life. वो जरूर आपके परिवार में ऐसा होगा। And two things again written in this psalm is about wine and about olive. और हम इस भजन संगीता में देखते हैं दो बातें लिखा गया, एक दाखलता के बारे में और एक जलपाई के बारे में। So in a satisfied family, एक संतृप्त एक परिवार में the presence of olive and also the presence of wine. और एक जो दाखरस का जो दाखरस भी होगा, वहाँ पे जलपाई भी होगा। So wine represents many things in the word of God. और जो दाख है, दाख लता है, वो परमेश्वर के वचन में बहुत बातों को दिखाता है। It is the anointing of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिखाता है। And also wine represents fruitfulness. और जो दाख लता है, फल देने वाला को भी दिखाता है। You know, in the wine plant, if you go to a wine yard, you can see from one wine plant thousands and thousands of grapes. Lots of grapes are coming out of one wine tree. हम अब एक दाखलता के बागान में जाने से हम देख सकते हैं एक ही दाखलता के पेड़ से हजार जो अंगूर है उसको हम देख सकते हैं। It shows fruitfulness. वो जो उसका जो फलन है उसको दिखाता है। When 12 spies went to spy out the land of Canaan, जब 12 जो लोग कनान को जब देखने के लिए गए थे, they came with grapes. और उन्होंने अंगूर को लेकर आया, carrying the grapes. उन्होंने इतना भारी था, उनको 2 लोगों को लेना पड़ा। That much bigger was that grapes और they इतना carried. बड़ा अंगूर था वो। You can imagine how much that wine tree was fruitful. तो आप सोच सकते हैं कि वो जो दाखलता का जो पेड़ था कितना
फल देने वाला था। To that extent, God will make you fruitful. और उतना ही आपको वो फलवंत बनाएंगे। For one example, in the land of Zarephath, in Elijah's story, we see a widow ready to commit suicide. और हम बाइबल में एक कहानी पढ़ते हैं, साराफात नामक एक जगह पे एक विधवा एक स्त्री थी जो अपने जीवन को खत्म करने जा रही थी। What was her problem? उसका क्या प्रॉब्लम था? Barrenness. एक कुछ भी नहीं है। Not the barrenness of the womb, but barrenness of food. और उसका घर में गरीबी था, खाने के लिए कुछ नहीं था। No wheat, no oil in that home. उसका घर में कोई तेल नहीं था, कुछ भी दाना नहीं था। So she was about to commit suicide after eating one bread. Only wheat available is only to make one bread. और उसके घर में बस थोड़ा सा आटा था, उससे वो एक चपाती जैसे बनाकर वो खाकर मरने के लिए निश्चय लिया हुआ था। Satan was ready to destroy that family. और शैतान आया कि ये परिवार को नाश कर दे। All on a sudden, prophet Elijah came. और उसी समय प्रवाचक एलीजा आते हैं। Elijah entered into that house. और एलीजा उस घर में आता है। My dear people, if Jesus enters into your house, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके परिवार में अगर आता है, some miracle is going to happen inside. तो आपके जीवन में कुछ आश्चर्य होने वाला है। Your that bottle, that what is that wheat pot is going to be empty, but when Jesus enters your family, some supernatural miracle is going to take place. आपका जीवन में जो कुछ खाली था उसको यीशु मसीह पूरा करेगा। Elijah said, don't worry, एलिया ऐसा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, make a bread for me. तुम पहले मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। She obeyed. और उस स्त्री ने वो परमेश्वर के दास जो बोला उसको पूरा अनुसरण किया। What happened? क्या हुआ? Oil after oil, उसमें जो एकदम खत्म हो गया था उसमें तेल भरने लगा। wheat after wheat. और जिसमें आटा खत्म हो गया था आटा आने लगा। Every day they are making bread. और रोज अभी वो कुछ ब्रेड बनाते हैं। They are not going to any shop to buy wheat. और उन लोग किसी दुकान में जाकर सामान को खरीदने नहीं जाते। But there is no empty bottles, empty pots. The wheat flour is increasing and increasing and increasing and increasing. The oil is increasing and increasing and increasing. इतना इस्तेमाल करने के बाद भी कभी भी उनका तेल, उनका आटा खत्म नहीं होता है। जितना जितना लेता है उतना उतना भर के आता है। Fruitfulness. ऐसे उन लोग फलवंत हो गए। Your family is going to enter into another level of anointing. There should come out of your family fruitfulness. और आपके जीवन में परमेश्वर के अभिषेक से ऐसा एक फलन, एक जीवन, पारिवारिक जीवन आपको मिल सकता है। Like this wine tree, fruitfulness is going to come out of your family. जैसे एक दाखलता के जैसे आपके जीवन से बहुत ही फ्रूट्स निकलने वाले हैं। And one more thing, wine represents sweetness. और एक बात है, ये जो दाखरस है उसको स्वीटनेस, मधुरता दिखाता है। Your family is going to be so sweet. और आपका जो परिवार है वो बहुत ही मधुर होने वाला है। Sweetness is going to come out of your family. आपके जीवन से बहुत ही मधुरता निकलने वाली है। In between you and your husband and your children, there will be sweetness. आपके बच्चे, आपके पति, उसके बीच में बहुत ही मधुरता निकलेगी। And you will become a sweet family to other families. और आप बहुत ही मधुर एक परिवार होंगे दूसरे परिवारों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। That is the ultimate plan of God. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। And the olive represents power. और जो जलपाई है वो शक्ति को दिखाता है। And you will have power. और आपको शक्ति मिलेगी। The power of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की शक्ति मिलेगी। Your children will be all around your table. आपके बच्चे आपके मेज के चारों तरफ होंगे। With the power of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा। There is no fighting with each other. वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। The children are not going to be addicted to some drugs or some other things.
वहाँ पे ऐसे परिवार में आपके बच्चे कोई ड्रग्स का कुछ का नशा में नहीं आता है, but around your table with the power of the Holy Spirit, maybe they are prophesying, maybe they are sharing the word of God. That olive experience God want to give in your life. और आपके जीवन में प्रभु वो ओलीव का, वो जलपाई का जो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। आपके बच्चे आपके मेज के चारों ओर आपके साथ आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए उन लोग शायद प्रभु के वचन को बोलते होंगे, उन लोग प्रोफेसी करते होंगे, ऐसा आपका बच्चे लोग बड़ा होंगे। Give more importance to spiritual things. आप ज़्यादा आत्मिक बातों पर ज़्यादा जोर दीजिए। My dear brothers, give more importance to spiritual things. मेरे भाई लोग, आप ज़्यादा आत्मिक बातों के लिए ज़्यादा समय दीजिए। Don't disregard spiritual things. आप जो ये आत्मिक बातों को कुछ कम है कर मत सोचिए। Give first priority to spiritual things. आप सबसे पहले जो आत्मिक बातों के लिए अपना जीवन में समय Come दीजिए। for every Sunday worship. आप हर संडे आराधना में आइए Go for every fellowship. और हर एक फेलोशिप जो आपके पास है उसमें जाइए। Do not say that, oh, we are going too much. We are going for fellowship too much. Let us stop. Let us go only for one day in a week. Don't say like that. आप ऐसा कभी मत बोलिए कि हम रोज फेलोशिप जाते हैं, हमारा समय ऐसे ही जाता है, हमें बस एक बार फेलोशिप जाने की जरूरत है। What you are doing in this world, in eternity, there is no account for those things. But when you spend time before the presence of God, there is account in eternity. That have eternal value. और आप इस संसार में जो कुछ करते हैं उसके लिए कोई आपको रिवार्ड नहीं है, लेकिन आप इस परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो जरूर उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। What you are in Christ will be accounted in heaven. What you are on this earth, it has no value in heaven. आप यीशु मसीह में क्या क्या करते हैं, यीशु मसीह के लिए क्या क्या करते हैं, उसका स्वर्ग में उसका जो प्रतिफल मिलेगा। आप इस संसार में संसारी बातों के लिए क्या क्या करते हैं उसका कुछ भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। So let the olive experience comes in your life. इसलिए आपके जीवन में जो ओलीव का, जो जलपाई का जो अनुभव आपके जीवन में हो सके, The power of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा की जो शक्ति आपके जीवन में होने पाए, There you will have a socially accepted, fruitful, satisfied life. और तब आपके जीवन में सामाजिक रूप में जो बहुत ही ग्रहण किया हुआ ऐसा फलवंत एक परिवार आपको मिलेगा। Society also will say, this man feared God, this man followed Jesus Christ. Look, he is blessed in every area of his life. और सच्ची में आप ऐसे मानकर जाएंगे तो इवन आपका जो समाज है, सोसाइटी भी बोलेंगे, देखिए ये आदमी जो परमेश्वर का भय मानकर चला, इसका परिवार कितना आशीषित हो गया है। Initially maybe people will say, you and your wife every Sunday you are going to the church, every Wednesday you are going for the fellowship, every Friday you are going for the fasting prayer. Why these people are wasting their life? आपके जो समाज में लोग हैं, आपके आस पड़ोसी बोलेंगे, इन लोग क्या करते हैं, पति पत्नी रोज संडे, फिर हर फेलोशिप में वेडनेसडे, सैटरडे, सब इनको कोई काम नहीं है क्या? But one day the same people will say, oh, now I know, because of their God-fearing nature, God has blessed them to this extent. नहीं, यही व्यक्ति लोग जो आपको दोष दे रहे हैं अभी, वो एक समय में बोलेंगे क्योंकि ये परिवार ने परमेश्वर का भय माना है, इसलिए ये परिवार को इतना आशीष दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear people, so give more importance to the olive power, the anointing of the Holy Spirit. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ज्यादा आत्मिक बातों में, पवित्र आत्मा की शक्ति, उस सब के बातों में ज्यादा ध्यान Our दीजिए। family, almost 100 years, we are Pentecostal people. और जो हमारा जो परिवार है, हम 100 साल से हमारे जो पीढ़ी देखने से हम लोग यीशु मसीह को पेंटेकोस्ट लोग हैं। My grandfather came to faith some 90 years ago. मेरा जो दादा है कुछ
90 इयर्स पहले प्रभु में आया And he and his wife and his 9 children believed in Jesus Christ. और वो उनके पत्नी और उनके 9 बच्चे वो पूरा यीशु मसीह को विश्वास किया। 90 years ago. 90 इयर्स आगे की बात है। That time the social people, society people, they said, what will happen? What is going to happen to Varghese? और ये पूरा जो उनके जो लोग थे, उनका जो आस पड़ोसी लोग थे, सब ने बोला ये वर्गीस को अभी क्या होगा। But after 90 years, I tell you, और मैं आज बोल सकता हूँ 90 इयर्स के बाद the same group of people now telling, oh, Varghese family is blessed because they followed Jesus Christ. और वही लोग जो उस समय दोष देते थे वो आज बोलते हैं ये वर्गीस के परिवार को प्रभु ने इतना आशीष दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना, यीशु को उन्होंने देखा। Varghese sons and grandchildren and great grandchildren are there all around the world, at least 5 continents in this world. और आज ये वर्गीस का पोता नाता नाती पूरे इस संसार के ये 5 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। And tonight also one of the grandson of Varghese is preaching the gospel in Arunachal Pradesh. और आज भी वो वर्गीस का एक जो पोता था परमेश्वर का वचन इस अरुणाचल में बांट रहा है। My dear brothers, this is your responsibility. ये आप मेरे जो भाई लोग हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। If you are not going to be so spiritual, let me stand back, let my wife go, friend. That is a disorder. There is an orderly manner in everything. और आप जो खासकर जो भाई लोग हैं आप ऐसा मत सोचिए मैं पीछे बैठूंगा, मैं घर में बैठूंगा, मेरे पत्नी लोग को जाने दो, गिरजा जाने दो, आराधना करने दो, ऐसा मत सोचिए। ये बाइबल में जो ऑर्डर है उसका विपरीत है। बाइबल में हर एक बात के लिए एक ऑर्डर दिया गया है। In Joshua chapter 24 and 15, there not Joshua's wife is telling that we will serve God, but the leader in that family, Joshua, the father of that family, the husband of that family, he says in chapter 24 and verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. और योशुआ के किताब जोशुआ 24 वर्स 15 में ऐसा लिखा है, योशुआ का पत्नी इसको नहीं बोलता बल्कि योशुआ बोलता है, मैं और मेरे परिवार हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। This is the time. Wake up, stand for Jesus. लेकिन अभी ऐसा समय है जब हमें यीशु मसीह के लिए खड़ा होना है, यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। In Exodus chapter 13 and verse 18, there is a word come in English, in orderly ranks. और एक्सोडस निर्गमन की किताब में हम देखते हैं ऐसा एक पद को लिखा है, सब कुछ ऑर्डर में, नियम में होता है। When they came out of Egypt, जब वो मिस्रैम से बाहर निकले, there was an order. वहाँ सब ठीक ठाक थे। According to that orderly manner, they marched left, right into the land of Canaan. और जब वो मिस्रैम से निकला सब कुछ ठीक ठाक से जा रहा था, उसी से उन लोग वो कनान देश उनको जो प्रभु ने जो दिया था वो जगह में उन लोग घुसते हैं। If you make a decision and come to that orderly manner, orderly rank, अगर आप सब कुछ ठीक ठाक में वो रैंक में आ जाते हैं, and particularly husbands will receive some responsibilities from the Lord. और तब आप जो भाई लोग हैं, पति लोग हैं, आपको परमेश्वर के द्वारा कुछ आपके ऊपर जो अधिकार दिया जाएगा। Husbands will become the king in that family. तो जो पति है आप लोग वो जो आपका जो परिवार का राजा बना होगा। King, what is the meaning of king? एक राजा का अर्थ क्या है? Decision making person. वो पूरा घर का जो निर्णय है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निर्णय आप लेंगे। Why in many families the ladies are influencing decision making and the ladies are sitting as the head of the family? Why? ऐसा क्यों होता है? कई परिवारों में जो पत्नी है वो पूरा निर्णय लेता है, वो पूरा परिवार का सिर के ऊपर बैठता है। Maybe because these men are spiritually defeated. शायद आप लोग आत्मिक रूप में इतना ऊपर नहीं आ पाते इसलिए होंगे। If you rise up as the king of your family, अगर आप अपने परिवार के राजा के समान
ऊपर उठते आत्मिक रीत में। Consulting with Jesus Christ, you will take the decisions in your family. अगर आपको यीशु मसीह से बहुत गहरा संबंध है तो आप अपने परिवार में एक एक निर्णय लेंगे। The second responsibility Jesus will give to every husband, he will become the priest of that family. और हर एक पति को प्रभु और एक जिम्मेदारी जो देगा वो है आपको आपका परिवार का पुरोहित बना देगा। You will stand in between God and your family. आप आपके परिवार और परमेश्वर के बीच में खड़े होंगे। A man of authority. एक जो मनुष्य जिसके पास अधिकार है। You will pray for your family. आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless your family. तब परमेश्वर आपके परिवार को अनुग्रह देगा, आशीष देगा। Sickness will not enter in your family. तब आपके परिवार में कोई बीमारी नहीं आएगी। You will not lose money here and there. आपके पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे। You will become the priest in your family. आप आपके परिवार का पुरोहित बन जाएगा। Many people are running after pastors and prophets. That is very good. और बहुत लोग आज क्या होते हैं, पास्टरों के पीछे जो प्रवचन बोलते हैं, प्रोफेसी करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। But if you become a priest in your family, लेकिन अगर आप पति लोग अपने परिवार में पुरोहित बनते हैं, when there comes a problem in your family, आपके परिवार में कुछ समस्या आते हैं, when your wife becomes physically sick, और आपकी पत्नी जब बीमार होती है, you can lay hands and you can pray for your wife. आप अपने हाथ को रखकर अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You are the priest in your family. आप आपके परिवार के लिए एक पुरोहित है। And the third position God will give you in your family. और तीसरा स्थान जो आपको पति लोग को जो आपके परिवार में देगा, You will become the prophet in your family. आप आपके परिवार के लिए एक प्रॉफिट बन जाओगे। Prophet in one sense correction. Whatever wrong things happening in the family, you will be able to correct the things and make the things in order. आपको प्रभु आपके परिवार के लिए एक प्रॉफिट बना देगा। प्रॉफिट का अर्थ है कि आपके परिवार में कुछ गलत चल रहा है, वो गलती को सुधार कर उसको अच्छा कर सकता है। ऐसा अधिकार प्रभु आपको देगा। To such an order God want to bring every family. ऐसे ठीक ठाक ऑर्डर में प्रभु आपको लेकर आना चाहता है। King, priest and prophet, the husband. आप जो पति लोग हैं, आपको आपके परिवार के लिए राजा, आपके परिवार के लिए आपको पुरोहित, आपके परिवार के लिए आपको प्रवाचक बना देगा। A submissive wife. और एक जो अधीनता में रहने वाली एक पत्नी, Supporting wife. एक जो आपको हरदम सपोर्ट करने वाला एक पत्नी, Your real mate. और आपका सच्ची में जो मित्र है, मेट, Right mate. और आपका सही में मिलने वाला जो Right मेट, partner. आपको राइट जो सच्ची में जो मिलने वाला, Standing with you. आपके साथ वो खड़ी होगी। In times of prosperity as well as in times of poverty, as well as in times of health, as well as in times of sickness. आपके साथ वो हरदम खड़ी होंगी। आपको पैसा है, पैसा नहीं है, बीमार है, बीमार नहीं है, खाना है, खाना नहीं है, ये सब समय में आपके पत्नी आपके साथ होगी। Children according to the order. और ये ऑर्डर में हम जाने से बच्चे भी, That is the plan for your family. यही परमेश्वर का प्लान है आपके परिवार के लिए। How many of you are ready to receive this? आप में से कितने लोग प्रभु से इस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? These principles are not heavy principles. ये कोई बहुत भारी वाला कुछ बात नहीं है। Not at all. ये कोई भारी वाला कुछ प्रिंसिपल नहीं बोलते। It is so simple. ये बहुत ही आसान है। One person will come to your family. एक व्यक्ति आपके परिवार में आएगा, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह, He will do these things for you. और यीशु मसीह आपके जीवन में ये सब आपके लिए करके देगा। Your responsibility, just cooperate with Jesus Christ. और आपका क्या कर्तव्य है, आप यीशु मसीह के साथ दीजिए। वो क्या बोलता है, यीशु मसीह क्या चाहता है, उसी प्रकार करना है। Hallelujah. God want to make your family satisfied, fruitful family. और उतना तक आपके परिवार को एक संतृप्त और फलवंत परिवार प्रभु बनाना चाहते हैं। And in this Psalms 128, और भजन संगीता 128 में there we see olive and wine. और हम वहाँ पे एक जलपाई और दाखलता को देखते हैं। And then we see, तब हम फिर उसके बाद देखते हैं, lastly we see, you may see your children's children. और इस ऐसे लिखा है, परंतु तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे। वाह!
You may see your children's children. इसमें लिखा है कि आप आपके बच्चों के बच्चों को भी, नाती और पोतों को भी देख पाओगे। That's long life. इसका अर्थ है कि आपको बहुत बड़ा उम्र दिया जाएगा। With long life, God will satisfy you. आपको बहुत लंबा उम्र देकर प्रभु आपको संतृप्त करेगा। Many times when we speak about long life, people will say, "Brother, already we are fed up. We want to go at the earliest to heaven." और लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अभी हम अपना जीवन से इतना परेशान हो गए, जितना जल्दी ये दुनिया से जाना चाहते हैं। No, ऐसा नहीं है, no. ऐसा नहीं If है। your family life becomes a heaven on this earth, अगर आपका जो परिवार इस धरती पर एक स्वर्ग बन जाता है, What is the difference between going heaven and living in this heaven? What is तो the difference? क्या अंतर है? आप उधर स्वर्ग जाना और इधर रहना, दोनों एक जैसा ही है आपके लिए। That's why Paul saying that I don't know whether I have to go to heaven or to live on this earth. इसलिए पौलुस भी ऐसा कहता है, मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे स्वर्ग जाना है या मैं धरती पे रहूं। Why? क्यों? For Paul, already Paul is living in heaven. क्योंकि पौलुस तो अभी स्वर्ग में रहता है, आत्मा में। He is able to give you long life. और प्रभु आपको ज्यादा उम्र देने के लिए वो काफी है। In Psalms it is written, maximum our age is 80 years. और भजन संगीता, दूसरे भजन संगीता में हम देखते हैं सबसे ज्यादा हमें 80 इयर्स हम जी सकते हैं। But that's not right. लेकिन ये ठीक नहीं है। This is out of depression. The psalm is saying that up to 80 years. और तब जो भजन संगीता लिखने वाला दुखी में था, तब वो ऐसा लिखता है। But actually God said that man's age will be 120 in Genesis chapter 9. उत्पत्ति में परमेश्वर जो एक व्यक्ति का जो कितना साल रहना है वो लिखा है, वो 120 इयर्स है। Even after that, Abraham lived 175 years. और अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं वो 175 उम्र तक वो जिंदा रहा। And nowadays I don't know how many years. We don't see many people living 100 years or 120 years. But we can trust God. Even that God is able to do in our life. और अभी के संसार में हम इतना ज्यादा उम्र वालों को अभी हम नहीं देखते। Yes, you can trust in God. Even God can increase your life. आप प्रभु को भरोसा कीजिए, प्रभु आपको शायद बहुत ही लंबा उम्र भी दे सकता है। Don't worry. आप उसका चिंता मत Whether you कीजिए। live 60 years or 80 years or 120 years, no problem. Up to what age you live a satisfied, fulfilled, fruitful life. और इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 60 इयर्स रहेंगे, 80 इयर्स रहेंगे, 100 इयर्स रहेंगे, लेकिन आप जितना साल इस दुनिया में रहते हैं, एक संतृप्त खुशी से आप रहिए, ये बात है। Not a fighting life. हरदम झगड़ा करने वाला एक जीवन नहीं, Not a hating life. एक दूसरा को एकदम बैर करने वाला जीवन नहीं, But a loving life. लेकिन बहुत प्यार से भरा हुआ जीवन। Your whole life should become a love letter. और आपका पूरा जो जीवन है वो एक लव लेटर बनना है। Love your wife, अपने पत्नी को प्यार Love your करना, children. आपके बच्चों को प्यार करना, grandparents. और आपके जो पूर्वक लोग हैं, And if God is giving you long life, Great grandchildren and great grandchildren. आपके नाती पोतों को प्यार कर कर Really, it seems to be very tasty, is it? आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? I'm giving you some taste. आपको बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा हूँ। ये खाना टेस्ट करने के लिए आपको इच्छा है? ये जो बात है इसको टेस्ट करने के लिए इच्छा है। I'm giving you some pieces. Taste it. आपको कुछ छोटा छोटा पीस में दे रहा हूँ, आप उसको टेस्ट कीजिए। And if you like this life, अगर आपको ऐसा जिंदगी पसंद है, seek for it. आप उसकी खोज में रहिए। Go back to your home and discuss with your wife and tell the wife, we are also going to prepare the same food at our home. और आप घर में जाकर अपने बीवी को बुलाकर बोलिए, आओ हम बात करेंगे, हम भी ऐसे ही खाना आज से बनाना शुरू करेंगे। And the Lord is going to fill you with long life, satisfied life. और प्रभु जरूर आपको बहुत ही लंबा उम्र देगा और संतृप्त एक परिवार देगा। Children, बच्चे देंगे, children's children, बच्चों के बच्चे,
peace of Jerusalem, और यरूशलेम का जो शांति है, peace of Itanagar, और ये ईटानगर का जो शांति है, prosperity of Arunachal Pradesh, और अरुणाचल की जो भलाई है, peace of India, और हमारी इंडिया की जो शांति है, India turning as a Christian nation, और इंडिया जो भारत जो है वो एक क्रिश्चियन नेशन में बन जाएगी, one of our believer becoming the chief minister of Arunachal Pradesh. और हमारे बीच से एक विश्वासी हमारे अरुणाचल प्रदेश का जब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, You will see, आप वो देखेंगे, you will see. आप वो देखेंगे। Satisfied, fruitful family, you will see it. अगर आप संतृप्त और खुश एक परिवार है, आप जरूर इस बात को देखेंगे। बहुत बुढ़ा हो गया अभी, बहुत बुढ़ा हो गए, 90 साल हो गया, 90 इयर्स हो गए, पूरा ग्रैंड चिल्ड्रन और चारों तरफ, आपका पूरा नाता नाती से भरा है। एक प्रॉफिट है, एक उसमें से एक प्रॉफिट हो बड़ा जाए ऑफिसर है, और एक बड़ा ऑफिसर बन गया, ये ऑल वर्ल्ड जाने वाला एक बड़ा प्रीचर है. और पूरे संसार में जाने वाला एक प्रीचर बन गया। This beautiful girl is a singer. और ये मेरी जो बहुत सुंदर जो लड़की है वो बहुत अच्छे से गाना गाती है। She is a college lecturer and also writing Christian books. और मेरी जो दूसरी बेटी है बहुत अच्छा किताब लगती है, वो कॉलेज में लेक्चर है। Satisfied, आप बहुत ही संतृप्त fulfilled. हैं, आप पूरा भर गए हैं। Then you will tell the Lord, तब आप परमेश्वर की ओर देखकर बोलेंगे, Lord, enough. प्रभु बस हो गया, I am coming home. अभी मैं अब वापस अपना घर आ रहा हूं। And this is the satisfied, fruitful, fulfilled life. और Fulfilled family. और यही जो है फलवंत और संतृप्त एक परिवार है। Amen. आमीन। How many of you want to be like this family life? How many want to be like this? और कितने लोग इस प्रकार का एक पारिवारिक जीवन को बिताना चाहते हैं? Please stand on your feet. आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए। Close your Bibles. आप अपने आंखों को बंद कीजिए। Let us worship the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In an orderly manner. और बहुत ही एक ऑर्डरली मैनर में, In an orderly manner. और एक ऑर्डरली मैनर में Let us go on. हम लोग आगे जाएंगे, Let us go on to perfection. और हम लोग एक पूर्णता में जाएंगे। In an orderly manner. एक ऑर्डरली मैनर में Climb to that satisfaction आप level. उस पूर्णता में आगे बढ़ना है। It is possible to you. क्या ये आपसे संभव है? We too are trusting in God so that this will abound in our life. और हम भी परमेश्वर पे पूरा भरोसा करते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। We want to march on to the land of Canaan. और हम भी हमारे लिए रखा हुआ उस स्वर्ग देश के और कनान के और हम आगे बढ़ रहे हैं। We want to march on to the land of abundance. और हम उस समुद्री के जो जगह है उसके और हम आगे बढ़ते हैं। Satisfied, fruitful and fulfilled life. और हम फलवंत होकर संतृप्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। Everybody close your eyes. आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए। Let's start worshiping the Lord. हम आराधना करेंगे प्रभु While की। you are worshiping the Lord, हम जब प्रार्थना करते हैं, this is going to happen in your life. ये आपके जीवन में होने वाला है। In the coming days, this is going to happen in your life. और ये आपके जीवन में होने वाला है। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। What all troubles you are going through, don't think about such troubles. Trust in God. Jesus is going to restore your family life. आपका परिवार में क्या क्या समस्या है, इसको सोचकर आप चिंता मत कीजिए। यीशु मसीह पे पूरा भरोसा कीजिए, वो आपका मदद करेगा। Everybody start praying. आप सब प्रार्थना कीजिए, Everybody start praying. और सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। Come on, pray loudly. और आप लोग सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। Oh, Ramzela Baba la 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 Gaba Zura Baba Lili Marabadunadin. Hokshoborodana Bakam Sidirebel. Lord Jesus, we pray that the blessings which we are experiencing in our life as an anointing, let it flow to this family, so that this family also should become a model family in Arunachal Pradesh for the glory of the kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. I bless this family in Jesus' name. Lord Master, we pray for this wonderful family. Restore this relationship, Lord. Build up this relationship, Lord. Start altogether a new construction in this family. With God, nothing is impossible. A restructure taking place. A remolding taking place. Lord, we pray and release and we bless this family. Hallelujah. Hallelujah.